Hello student, as you know that we are discussing real number. If we talk about the real number is the set of the rational number and the irrational number. If you want to understand what is the meaning of the real number and the rational number as well as irrational number in the depth, then please watch our previous video. In this video, we will discuss about the classification of the rational number. So let us start. Now, I would just like to give you a short recap of rational number and the irrational number. If we talk about the rational number, any number which can be expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are the integers are known as the rational number. If if I would like to define the rational number in the term of the decimal expansion, then we can say that the number whose decimal expansion is either terminating or non-terminating but repeating is known as the rational number. If we talk about the irrational number, then the number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are the integer and q is not equal to 0 is known as the irrational number. If I would like to define the irrational number in the term of decimal expansion, then we can say that the number whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating is known as the irrational number. Don't worry, I am not going just like anything. If you have doubt regarding rational number, irrational number and their decimal expansion, then I have already uploaded the video regarding that. Just go and watch it. Now if we talk about the rational number and the classification of it, then it can be classified as the integer and the fraction. Now what is integer? Integer is nothing but the set of negative numbers and the whole numbers, or we can say that integer is the set of negative number 0 and the positive number. Now note here 0, which is the smallest whole number, is neither positive nor negative. I am repeating it. 0 is neither positive or not negative number. It is a mediator between the negative number and the positive number. I think it is clear to everyone. So these are the negative numbers, these are the whole number in which 0 is neither positive nor negative, and these are the positive number. If we talk about -1, which is the negative number and it is the largest negative number, and if we talk about the 1, then it is the smallest positive integer, isn't it? So इसमें उल्टा चलता है। यदि आपसे कंपैरिजन कोई पूछ दे -10 और -12 में कौन बड़ा है, तो इसमें आपका जो -10 होगा वो बड़ा होगा। निगेटिव नंबर में उल्टा चलता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट -1 इज़ द लार्जेस्ट निगेटिव नंबर इन द इंटीजर। If we talk about the fraction are the number which are the parts, are the portion of the whole things. For this, let us take an example. If we have a barfi and I would like to divide it into 4 portions. For this, we have to divide the whole barfi into the 4 equal parts, and each part is represented by 1/4 numerically, in which the number which is written in the top is known as the numerator of the fraction, and the number which is written at the bottom is known as the denominator of the fraction. So fraction is nothing but a portion, or we can say that the equal portion of the whole things. Now see here, 1/4, which is a fraction, it is also a rational number. Now obviously it has to be rational number because it is falling in the category of rational number
only. So from here we get to know what is whole number also. Whole number is the collection of the counting number and the zero, or we can say that the whole number is the set of zero and the counting number, because we start counting from 1. We know that the counting number is known as the natural number, and counting number start from 1. So 1, 2, 3, 4, 5 and so on till infinite, this number is known as the natural number. And when we take 0 with the counting number, then it will become whole number. Now we will see the classification of the natural number. So natural number can be classified as the composite number, prime number, even number, odd number, perfect number, को-प्राइम नंबर एंड द ट्विन प्राइम नंबर. अब हम सबको बारी बारी से लेंगे और उनके डिफिनेशन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे. सो द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज द कंपोजिट नंबर, एंड द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर. मतलब प्राइम नंबर के पास केवल 2 ही फैक्टर होगा और एक फैक्टर 1 होगा और एक वह संख्या खुद होगी, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं. और जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं. कुछ एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे. अगर हम 2 के फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 2. सो इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, और इस बात को आप यहाँ पे समझ सकते हैं. फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज 2, दैट इज दैट नंबर इटसेल्फ. सो इट इज प्राइम नंबर. इट इज़ प्राइम नंबर. अगर हम 4 का फैक्टर करें तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा. तो 4 के जो फैक्टर की संख्या है वो क्या है, मोर देन 2 है. क्या है, मोर देन 2 है. तो इसलिए हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया. और यदि हम 5 का फैक्टर लिखें तो 5 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 होगा और एक 5 होगा. तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं. अगर हम 6 का फैक्टर लिखें तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा. अर्थात इसके भी फैक्टर क्या हो गए, हमारे 2 से अधिक हो गए. इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा. और इसी तरीके से हम 12 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया. और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, उसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ. यदि हम 1 की बात करें तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. एक जो मेरा है वह न ही कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है. इस बात को हमें गौर करना है. ठीक है, एक बात और बता देता हूँ. अभी हालांकि मैं आपको इवन नंबर बताया नहीं हूँ, फिर भी बता देता हूँ मैं. 2 इज़ द ओनली नंबर इन द नंबर सिस्टम विच इज़ इवन प्राइम, इजंट इट. और जितने भी बाकी नंबर होंगे वे सब प्राइम तो होंगे बट वे ऑड होंगे. देयर इज ओनली 2 इन द नंबर सिस्टम विच इज़ इवन एज वेल एज प्राइम. ठीक है. और यदि बात किया जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या होगा, 4 होगा. ठीक है, इस बात को भी हमें नोट करना है. Now if we talk about the even number, then we can define it as the number which is divisible by 2 is known as the even number, and the number which is not divisible by 2 is known as odd number. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मिसकंसेप्शन होता है कि वो इसको डिफिनेशन को ये समझते हैं कि जो नंबर 3 से कट जाए उसको ऑड नंबर बोलते हैं. मैं आपको यहाँ क्लियरली बता रहा हूँ कि द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज द ऑड नंबर. सो अब यहाँ पे हम कैसे पहचानें किसी भी नंबर को. ठीक है, मतलब यदि कोई नंबर हमें दिया हो, जैसे नंबर दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो इसमें हम 2 से भाग दें और रिमाइंडर 0 बच रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज़ इवन नंबर. बट क्या हर बार हम डिवाइड करके ही अपने रिजल्ट तक पहुँचेंगे, तो ये पॉसिबल है बट लेंदी प्रोसेस है. तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इफ़ एनी नंबर इंट्स एट 0, 2, 4, 6 and 8, then that number will become even number. Even this is the divisibility rule for the
बाई 2 इज आल्सो ट्रू, मतलब ये 2 से डिविजिबिलिटी रूल भी, यदि किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आते हैं तो नंबर 2 से कटता है, बात एक ही है मिला जुला के। सो इफ़ यू टेक दिस नंबर इट विल इंड एट 8, तो 8 इसमें आ रहा है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और इस नंबर को लास्ट में देखा जाए तो हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें हमारा 0 है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इस प्रकार हमने इवन और ऑड नंबर को भी पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला हमारा जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट नंबर। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर को। सो परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यदि हम एक नंबर 6 को लेते हैं और 6 के फैक्टर को लिखते हैं, तो 6 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6, और इसके जो फैक्टर हैं उनको ऐड करिए आप, तो ऐड करने पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ लीजिए, 6 3 9 10 2 12 आ रहा है। और देखिए जो 12 है वह इस 6 के 2 टाइम्स के बराबर है। इस प्रकार हम परफेक्ट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, देन दैट नंबर इज नोन एज द परफेक्ट नंबर। इस प्रकार 6 जो है मेरा एक परफेक्ट नंबर है। एक परफेक्ट नंबर का डिफिनेशन और होता है, क्या वो होता है कि इसका हम जो फैक्टर लिखे हैं उसमें इस 6 को हम ड्रॉप कर दें और बाकी जो नंबर बचे उनको ऐड कर दें। तो हम 1 2 और 3 को ऐड कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। दैट इज़ यदि उस नंबर को हम छोड़ दें और बाकी जितने भी फैक्टर बचे हैं यदि उसको हम ऐड करें और ऐड करने पे हमें वही नंबर प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो पहला परफेक्ट नंबर हमारा क्या था, 6 था, और सेकेंड परफेक्ट नंबर हमारा क्या है, 28। तो 28 का फैक्टर को लिख को इस चीज़ को हम चेक करें तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा 4, फिर 7, फिर 14, फिर 28, ठीक है। अब इसको ऐड करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, ऐड करिए 1 2 4 7 14 28, तो आपका क्या हो गया है, 4 5 6 7 7 7 14 हो गया, 14 से 28 हो गया, 28 में फिर 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और 56 क्या है, 28 का 2 टाइम्स है। सो वी कैन से दैट 28 इज अ perfect number. In this manner of way we can check for 496 also, it will also a perfect number. Next one is co-prime number. तो co-prime number क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो co-prime number क्या होगा, तो ये दो ऐसे नंबर का पेयर होता है जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। सो वी कैन से दैट इफ़ A and B आर टू नंबर्स, इफ़ देयर HCF इज 1 देन दे आर नोन एज को प्राइम नंबर। और यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, उस पर फोकस करिएगा, अधिकतर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बोथ नंबर विल बी प्राइम। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एक 4 और एक ले लेता हूँ 11। अब 4 क्या है आपका, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 11 क्या है, प्राइम नंबर। यदि इन दोनों के CF को मैं डिवीजन मेथड से निकालूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, 4 2 जा 8, और यहाँ बचा 3, 3 से फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ बचा 1, 1 से 3 में डिवाइड करिए तो 3 1 3 जा 3। देखिए इन दोनों का HCF क्या आया, इन दोनों का HCF क्या आया, हमारा 1 आया। सो वी कैन से दैट 4 and 11 इज को प्राइम नंबर। और मैं आपको ये बात बताया हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बोथ नंबर इज प्राइम। सी हियर 4 इज नॉट प्राइम बट 11 इज प्राइम, बट दिस पेयर इज अ को प्राइम, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ट्विन का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो ट्विन प्राइम नंबर में दो ऐसे नंबर होंगे जो दोनों के दोनों ही प्राइम होंगे, और प्राइम होने के साथ साथ उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का। अगर उनके बीच में 2 का डिफरेंस है तो उनको क्या बोला जाएगा, ट्विन प्राइम। और समझिए ट्विन प्राइम नंबर में कंडीशन नेसेसरी है कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, हमारे प्राइम होने चाहिए। जैसे 3 और 5 को ले लीजिए, तो 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम है। इवन 3 और 5 क्या है, हमारे को प्राइम नंबर आल्सो है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वे अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। यदि आप वीडियो के इस चरण तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी पहुंच आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों तक हो सके। थैंक यू सो मच।